प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया है कि आज फिर से एक बार अपने बाइबल अध्ययन को हम शुरू कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, दिस इवनिंग once again we are grateful to the Lord for giving us this time to have this Bible study, and nowadays we are studying the book of Hebrews, and today our text is Hebrews chapter 5 verses 1 to 6. Now, last time we studied about this great topic that Jesus is our high priest, and today we see how he became our high priest. And fifth chapter, in the beginning verses, we have the clarifications. मित्रों, आज के बाइबल अध्ययन में हम प्रभु यीशु मसीह के महायाजक होने के उस कार्य पर हम गौर करेंगे और ये भी देखेंगे कि वो क्यों महायाजक हमारे लिए बना। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से इन बातों पर ध्यान करना है और इस बात को देखना है कि वो हमारे जीवन में हमारे लिए प्रार्थना करता है। पर इससे पहले कि आज के अध्ययन को हम करें, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए। और हमारी प्रार्थना प्रभु इस वचन के गहराई को हम जाने और अपने जीवन को प्रभु आपके योग्य बना सके। हमें आपका डर हमारे मनों में डालें ताकि हम आपसे डरें, आपका भय माने और आपकी आज्ञाओं को मानने वाले बने। आज के वचन के अध्ययन पर आपकी आशीष हो। Lord, we pray as we study this word, let your Holy Spirit anoint us afresh so that we may comprehend, understand and acknowledge the meaning of this word in our hearts, so that we may follow these words as it is written in the Holy Scriptures. हम उनके लिए प्रार्थना करते पिताजी जो आज बीमार हैं, तकलीफ में हैं और जीवन के कठिनाइयों में हैं। आप ऐसों पर दया करें, ऐसों पर कृपा करें और अपने निकटता का एहसास आप उन्हें भी दें। आज के बाइबल अध्ययन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friend, the issue of this great topic or the subject is vast, very vast, and with this small or time of short time study we cannot comprehend lot of things, that how Jesus became our high priest, but to understand we'll see little bit. थोड़े समय के लिए समझने के लिए हम इन थोड़ी बातों पर ध्यान देंगे और इन बातों को अपने जीवन में समझने की कोशिश करेंगे। पवित्र बाइबल में पिछले अध्ययन में मैंने आपको याद दिलाया था कि प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है और चौथे अध्याय के 14 से 16 पद तक में इसका वर्णन किया गया। Dear friends, when you study this 4th chapter of Hebrews and verse 14 onwards, 16th up to 16th, we have a little description how he is our high priest. The word of God says, since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. यह लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। मित्रों, हमें अपना अंगीकार के बारे में सोचना। हमारा अंगीकार क्या है? मैंने आपको बताया था, आप जानते हैं कि हमारा अंगीकार क्या। व्हाट इज आवर कन्फेशन? माई कन्फेशन इज जीसस इज माई लॉर्ड, दैट इज माई कन्फेशन। There are many teachers in this world. There have been good teachers and people who have taught human being great lessons in our country and all over the world. India subcontinent has been counted as a land of philosophers, land of bhaktas or devotees, and it is so because India even today it's a religious country. Every person except few are religious. When you talk about their religiosity, it's not that they believe in living God, but they are searching. They are the seekers
of that living God who can save them, offer them moksha or mukti. In India, everywhere you will see the place of worship. You go from north to south, east to west, everywhere you will see people trying to find out someone who can answer their unlimited questions in their heart, in their lives. And therefore we have many worship places in India. हमारा देश एक धार्मिक देश कहलाता मित्रों, जहां पर हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो सत्य के खोजी हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, और अगर उनको मिल गया तो उसको अपने जीवन में वो अपना लेंगे, अपना रहे हैं, आज भी अपना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है मित्रों। और इसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो अंगीकार की बात यहाँ की गई है उसका मतलब है यीशु ही प्रभु है। उस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना। वी नीड टू एम्ब्रेस दैट कन्फेशन ऑफ आवर्स with stronghold. And what is the stronghold? That is the chamber of our heart. हमारे हृदय का वो स्थान जहां से उसको हम निकाल नहीं सकते। He remains there. Our confession remains there in our heart, inside, so that if any problem comes, if any trial comes, or if anything comes, we will not let it go. इसको हमारे हृदय के अंदर हमें थामे रखने की आवश्यकता। तो यहाँ लिखा है कि इसलिए कि जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सका, वरन वो सब बातों में परखात हो गया। आज हम देखना चाहेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो सब बातों में हमारे समान परखात हो गया तो भी निष्पाप निकला। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का महायाजक होना सब मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी बात है। हमारे लिए धन्य बात है कि हमारा मुंजी, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक बना। आज भी वो हमारे इस काम को करता है। इसलिए यहाँ लिखा है, हमने पढ़ा पिछले दिनों में, इसलिए आओ, therefore come, let us then we with confidence draw near to the throne of grace. हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चलें कि हम पर दया हो, so that we may receive mercy and find grace to help in the time of need. यहाँ लिखा है अनुग्रह पाए, वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सके। तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे। अब मेरी आशा है कि जब हम इन पर गौर करते हैं, इसको देखते हैं, तो प्रभु हमसे बातचीत करेगा। पहली बात जो यहाँ लिखा है वो लिखा है 5 अध्याय के पहले पद से, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूल भटके के साथ नमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए वह आप भी निर्बलता से घिरा हुआ है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसा ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। अब यहाँ पर इस तथ्य को हमें बहुत ही अच्छे से अपने हृदय के अंदर आत्मसात करना। मित्रों, अगर आप पुराने नियम में देखें, मैं चाहूंगा कि आप कुछ पदों को देखें मेरे साथ, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ निकाल लें मेहरबानी से। पुराने नियम में लेवियों की पुस्तक लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 5 और 6 पद को। यहाँ लिखा है लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय 5 और 6 पद। इसके बाद हम पढ़ेंगे शुरू के कुछ पदों को। तो यहाँ लिखा है, फिर वो इस्राएलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले। कौन ले? महायाजक। और यहाँ पर निश्चित रूप से हारून का नाम है, जो मूसा का बड़ा भाई था। और हारून उस पाप बलि के बछड़े को, जो उसी के लिए होना
होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करें। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ लिखा है, इट इज वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर दैट एरन वाज गिवन द कमांड दैट ही शुड फर्स्ट ऑफर द ऑफरिंग, sin offering for himself and for his household. Let me read again for you 16th chapter of Leviticus 5 and 6 verse. And he shall take from the congregation of the people of Israel 2 male goats for a sin offering and 1 ram for a burnt offering. Aaron shall offer the bull as a sin offering for himself and shall make atonement for himself and for his house. अब यहाँ पर जो मुख्य तथ्य है मित्रों, the main important thing is that God said to Aaron, even he said to Moses, because Moses was the leader of Israelite. उसने कहा कि तू अपने बड़े भाई को इस्राएल जाति के लिए महायाजक होने के लिए उसका अभिषेक कर, लेकिन याद रखना उसे सबसे पहले अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना है, अपने पापों के लिए दोष बलि चढ़ाना, पाप बलि चढ़ाना और अपने घराने के पाप के लिए। और जब ऐसा वो करे तो परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर उनके पापों को क्षमा करेगा। इसके बाद वो इस्राएल जाति के एक एक घराने के लिए पाप बलि चढ़ाए और उनके लिए प्रायश्चित करे। अब यहाँ पर जो तथ्य हमें समझने और जानने की आवश्यकता मित्रों वो ये है कि परमेश्वर ने इस बात को बता दिया था, ठहरा दिया था कि इस्राएल जाति के पापों का प्रायश्चित वो व्यक्ति करे जो उनका महायाजक हो, लेकिन वो भी उनमें से लिया जाता था जो हमारे समान इस संसार में मनुष्य पाए जाते हैं। और हमें अपने जीवन में हमारे पापों के क्षमा की आवश्यकता। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि महायाजक को भी अपने पापों के लिए और अपने घराने के पापों के लिए पाप बलि चढ़ाने की आवश्यकता। इस तथ्य को हमने देखा, याद रखिएगा लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय और उसके 5 और 6 पद को, जहां महायाजक भी अपने पापों के लिए सबसे पहले पाप बलि चढ़ाता है या इसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी। और इस तथ्य को आज भी हम जानते हैं। हम जो उसके सेवक हैं, हम जो उसके लोगों की अगुवाई करते हैं, हमें भी अपने जीवन को झांक कर देखने की आवश्यकता है ताकि हम उसके लिए शुद्ध किए जाए, पवित्र किए जाए। प्रभु का आत्मा हमारे जीवन को अंदर से जांचे ताकि हम अंदर से शुद्ध और पवित्र किए जाए और उसके सामने आने के योग्य बन सके। और इस कार्य के लिए परमेश्वर हमसे निरंतर बात करता है, उन लोगों से बात करता है जो अपने आप को जांचते हैं और परमेश्वर के सामने अपने आप को ला करके शुद्ध या पवित्र होना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने लेवी व्यवस्था के इस 16 अध्याय में से इस बात को देखा। अब यहाँ पर आप वापस आ जाइए, यहाँ लिखा है 5वां अध्याय इब्रानियों का, वी रीड नाउ हिब्रूज चैप्टर 5। यहाँ लिखा है, फॉर एवरी हाई प्रीस्ट chosen from among men is appointed to act on behalf of man in relation to God, to offer gifts and sacrifices for sin. He can deal gently with the ignorant and wayward, since he himself is beset with weakness. अब इस तथ्य को जान, यहाँ लिखा है, वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वो आप भी निर्बलता से घिरा हुआ। कौन? महायाजक, क्योंकि वो मनुष्य है, ही इज ए ह्यूमन बीइंग। और इसलिए यहाँ जो फर्क है यीशु मसीह में हमारे साथ है, ये बहुत बड़ा फर्क है मित्रों। दिस बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंसेस वी हैव बिटवीन क्राइस्ट एंड ह्यूमन बीइंग। क्राइस्ट वाज आल्सो, ही बिकम मैन, ह्यूमन बीइंग, बट ही वाज इन द सेम टाइम ही वाज द सन ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य बना, इस संसार में आ गए, लेकिन उसी समय वो परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए उसके अंदर कोई पाप नहीं पाया गया। उसके लिए आवश्यकता नहीं थी कि वो अपने गुनाहों के लिए प्रायश्चित करे या पापों को माने, क्योंकि वो निष्पाप था। और संत पतरस कहते हैं कि निष्कलंक और निष्पाप मेमने का लहू, यानी यीशु मसीह का लहू मेरे लिए और आपके लिए बहा दिया गया।
और वो लहू हमारे लिए हमारे पापों का कफारा है। तो इस बात को हमें अच्छे से अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड वेरी क्लियरली, एंड बाय वर्च्यू ऑफ हिज बिकम sinless, he is our high priest being appointed by God। इस तथ्य को अच्छे से हमें समझने की आवश्यकता है। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वो आप भी निर्बलता से घिरा हुआ है। इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून का के समान परमेश्वर को ठहरा ना चाहे। अब यहाँ पर जो प्रभु के सेवकों की जो सेवा है, उसके लिए एक तथ्य महत्वपूर्ण है कि वो परमेश्वर के द्वारा ठहराए जाते हैं। अब पहले कुरिन्थियों के पहले अध्याय के अंदर बुलाहट की बात है कि ना तो ज्ञानवान, ना कुलीन और ना समाज के अनुसार बहुत ज्यादा योग्य, पर उसने उनको बुलाया तो तुच्छ है, अयोग्य है, पर उसने उनको योग्य बनाया और अपनी सेवा के लिए अभिषेक किया। मित्रों, इस तथ्य को मैं सोचता हूं हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात को देखिए, यहाँ लिखा है पद 5 में, वैसे मसीह ने भी महायाजक बनने के बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने ही तुझे उत्पन्न किया। अगर आप भजन को देखें तो वहां पर इस बात को कहा गया। अगर मैं चाहूँ आपके सामने भजन 2 हम पढ़ना चाहेंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ देखिए क्या लिखा, भजन 2 निकाली मेरे साथ। लेट अस टर्न टू Psalm 2 and we read about the same understanding here about that Jesus is the Son of God। Psalm 2 भजन 2 में लिखा है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यही पद है, लिखा है, दूसरा अध्याय भजन संहिता उसका 7 पद। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाते जाते के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरे निज भाग भूमि बनने के लिए दे दूंगा। Now what is here written? If you read in English, I will tell of the decree. The Lord said to me, you are my son. Today I have begotten you. Ask of me, and I will make the nations your heritage and the ends of the earth your possession। अब यहाँ पर इसी तथ्य को यहाँ समझाया गया है। यह लिखा है, वैसे मसीह भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, लेकिन ये उसको बताया गया। क्या बताया कि तू मेरा पुत्र है और आज ही मैंने तुझे उत्पन्न किया। अब इस तथ्य को अगर हम समझ जाएं तो इस बात को समझने से हमारे जीवन को आशीष मिलेगी। इब्रानियों 7वां अध्याय देखें मेहरबानी से। 7वां अध्याय 26-27 पद में क्या लिखा है, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र, निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो। उन महायाजकों के समान उससे आवश्यकता नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाया, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। इब्रानियों उसका 7 अध्याय 26-27। Now Hebrews chapter 7, 26 and 27 verse we read here, for it was indeed fitting that we should have such a high priest, holy, innocent, unstained, separated from sinners and exalted above the heavens. He has no need, like those high priests, to offer sacrifices daily, first for his own sins and then for those of the people, since he did this once for all when he offered up himself. Now Jesus Christ died on the cross, offered himself as a sacrifice. But he was not offering that sacrifice for himself, because he was sinless. वो इस संसार में जब आए और उसने अपना क्रूस पर चढ़ा दिया मित्रों, तो वो अपने लिए ये कर नहीं रहा था,
क्यों? क्योंकि वो निष्पाप था और उसके निष्पाप होने की वजह से परमेश्वर ने उसके उस बलिदान को स्वीकार किया। वो खुद ही दाता है और खुद ही दान है। परमेश्वर पिता में वो है और पिता यीशु मसीह में है और ये पवित्र आत्मा में है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसलिए इस कार्य को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वो जब इस संसार में आया तो उसने अपने आप को परमेश्वर पिता के वेदी पर चढ़ा दिया उसने, ताकि हमारे लिए प्रायश्चित करे। लेकिन उसको अपने लिए प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो निष्पाप है। He was sinless and therefore there's no need that he should offer himself for his sins first. There's no need. और यहाँ इब्रानियों के लेकर यही तो कहता हूं, क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। वो कहता है कि उसने, वैसे मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था। किसने कहा था? पिता ने कहा था कि आज तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे उत्पन्न किया। तो इस तथ्य को अच्छे से हमें समझने की आवश्यकता है अगर हम प्रभु यीशु मसीह के महायाजक होने की बात को समझना चाहते कि वो उसका एक लौता पुत्र है जो संसार में आ गया और उसके आने से, उसके बलिदान होने से हम पापों से मुक्ति पाते हैं, पापों से छुटकारा पाते हैं। प्रभु यीशु निष्पाप है। प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। असली बाइबल में साफ लिखा है, बिल्कुल साफ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो को उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करे। अब तीसरी बात को हम देखें, पद 6 में लिखा है, इसी प्रकार वो दूसरी जगह भी कहता है, तू मलकीसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। अगर आप मेरे साथ निकाले भजन संहिता 110 साम 110 और उसके 4 पद को देखें तो यहाँ क्या लिखा है। भजन 110 और 4 पद। I like to read Psalm 110 verse 4. The Lord has shown and will not change his mind. What he has shown, you are a priest forever after the order of Melchizedek. यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा, तो मलकीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। अगर आप पुराने नियम में देखें तो वहां पर इसका वर्णन किया गया है उत्पत्ति की पुस्तक में, जब अब्राहम लड़ाई के बाद वापस आ रहा था और वहां पर लिखा है कि उसको वो सालेम का राजा मिला जो मलकीसेदेक था और उसने उसे आशीष दी। उसके बाद अब्राहम ने उसके सामने सारे भेंट चढ़ाए। ये अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं और ये स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसलिए जब हम इन चीजों को अपने जीवन के अंदर पाते हैं या इसको हम जानना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में इन बातों को अच्छे से समझ करके इनको अपने जीवन में रखने की आवश्यकता। मैं चाहूंगा कि हम लोग निकाल लें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय 14th chapter of the book of Genesis and let us read few verses. Let us read from chapter 14 verses 17 onwards. हमें मलकीसेदेक के बारे में थोड़ा जानने की आवश्यकता है। लिखा है, After his return from the defeat of Kedorlaomer and the kings who were with him, the king of Sodom went out to meet him, and at the valley of Sabo, that is the king's valley. And Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of the Most High God. And he blessed him, said, Blessed be Abraham by God Most High, possessor of heaven and earth. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. And Abraham gave him a tenth of everything. अब यहाँ पर देखिए, हिंदी में पढ़ना चाहूंगा 17 पद से उत्पत्ति का 14 अध्याय। जब वो कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तो सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उसे भेंट करने के लिए आया।
तब शालेम का राजा मल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु लेकर आया। उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परमेश्वर ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का 10वांश दिया। अब यहाँ पर ये व्यवस्था है और बाइबल में लिखा है कि उसके वंश का कोई पता नहीं था, किसका? मल्कीसेदेक का। और यहाँ पर भजन 110 के अंदर हमने पढ़ा, यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो मल्कीसेदेक, जो वो मल्कीसेदेक की रीति पर वो सदा का, यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने शपथ खाई और ना पछताएगा कि तू मल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। अब ये वही भाग है जो अभी हमने पढ़ा उत्पत्ति के 14 अध्याय के अंदर, जब उसने अब्राहम को आशीष दी और अब्राहम ने उसको सारे कमाई का 10वांश दिया। यहां प्रभु यीशु मसीह को मल्कीसेदेक रीति पर याजक कहा गया, सर्वदा का याजक कहा गया। और यहाँ लिखा है 5 अध्याय के अंदर जो हमने पढ़ा यहाँ पर, इसी प्रकार वो दूसरी जगह भी कहता है। नहीं, यहाँ पर हमने देखा भजन संहिता के अंदर हमने पढ़ा अभी 110 के अंदर 4 पद में, और उत्पत्ति के 14 अध्याय में पढ़ा, क्या पढ़ा? कि तू मल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा के लिए याजक है। और ये याजकपन की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह को दी गई, जो स्वर्ग का याजक है, स्वर्ग का राजा है, स्वर्ग का अनंत स्वामी है, स्वर्ग का अधिकारी है। मित्रों, जब उस संसार में आया तो उसको लांतान किया गया, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया और उसने हमारे लिए, मेरे लिए असहनीय वेदना सही। लेकिन परमेश्वर को यह भाया कि उसको कुचले, क्योंकि जब उसने ऐसा करा तो परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई। अगर वो मेरी जगह ना मरता, आपकी जगह ना मरता, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का छुटकारा नहीं हो सकता। और इसलिए आज जब वो स्वर्गीय स्थानों में बैठा है अपने सिंहासन पर पिता की दाहिनी तरफ, तो वो सारे संसार, सारे ब्रह्मांड को संभालने वाला, वो सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला है, हमारा उद्धारकर्ता भी। इसलिए आज वो हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए स्वर्गीय स्थानों में मौजूद है। He is living today to intercede for me and for you as our high priest, because he is sinless, and we are so privileged to have Jesus Christ as our priest, as our high priest. मित्रों, हम लोग धन्य लोग हैं कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने उसको निर्धारित करा। आप यूं कहिए कि उसने अपने आप को निर्धारित करा। He has appointed himself to pray for us, to intercede for us. To whom he is praying? To the Father. And Father is in him. He is in Father, and the Holy Spirit is there with them. Trine God. It's a mystery. But friend, I tell you that once we go to heaven one day, all the mysteries will be unrevealed to us. बाइबल में लिखा है कि मिस्ट्रीज तो परमेश्वर की है, और हम पढ़ते इसके बारे में व्यवस्था विवरण की किताब के 29 अध्याय में। All the mysteries belong to God, but those mysteries will be unfolded to us. It will be opened for all of us जब हम वहां पर जाएंगे। इसलिए हम प्रभु के नाम का हृदय से धन्यवाद करते हैं। मित्रों, मैं सोचता हूं कि हमने इन बातों को समझा। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। We want to thank God for this great mystery that He is my high priest. He is interceding for me today. And therefore, anyone need of His grace can come to Him. In the time of sickness, in the time of various needs, in the time of personal needs or collective need or the need in the family or in the church, we can come to Him. We have a high priest who is living there, praying for us. And Bible says our God never sleeps nor slumber. बाइबल में लिखा कि हमारा परमेश्वर ना तो सोता है और ना ऊँघता है, वो सर्वदा जीवित है और हमारे प्रार्थना करता है। We are so privileged to have our high priest of person in Jesus Christ. We want to thank God. आइए अपने आप को प्रभु के सामने
नम्र दिन करें और उससे प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को स्वीकार करें और हमें नम्र और दिन बना के हम उसकी महिमा आत्मा और सच्चाई से करने वाले बन सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि यीशु मसीह हमारे जीवनों के लिए प्रार्थना करता है प्रभु, हमारे घटियों के लिए, कमियों के लिए। जब हम अपने पापों को मानते हैं तो पिता से प्रार्थना करता है, पिता इसके पाप को क्षमा कर, इनके पाप को क्षमा कर, इनको शुद्ध कर दे। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमारे इतना प्रावधान किया है। हम आपके सामने नम्र बनते प्रभु, दीन बनते प्रभु, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। हमें अपने योग्य पुत्र पुत्रियां बनाए, हमें अपने योग्य आराधक बनाए प्रभु, हमें अपने योग्य सेवक और सेविकाएं बनाए। हमारे जीवन को प्रभु आप अपने योग्य बनाए। लॉर्ड, वी प्रे दैट मेक अस चिल्ड्रन ऑफ योर चॉइस, devotees of your choice, worshipper of your choice, and then make us servants of your choice, that we may fulfill your holy will in and through our lives. इस कलीसिया पर आपके आशीष हो प्रभु, आप में से हर एक को संभाले, हमारी सहायता करें। हमारे अयोग्यताओं को, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को प्रभु आप क्षमा करें प्रभु, आप हमें अपने योग्य बनाएं। हमारी प्रार्थना प्रभु आज उनके लिए जो जीवन में परेशान है, दुखी हैं, चिंताओं में है प्रभु, कष्टों में है, निराशाओं में है प्रभु, आप उनको उन सब परिस्थितियों से छुड़ाए और अपनी शांति से उनको परिपूर्ण करें, अपना अनुग्रह प्रदान करें। आज के वचन के बीच के लिए धन्यवाद देते प्रभु, जो हमारे हृदय रूपी खेत के अंदर बोया गया। हे प्रभु, शैतान उसको छीन ना ले, बर्बाद ना करे, परंतु प्रभु वो फलवंतित हो, उसमें से फल लगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हमें से हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, dear friend, for listening to us. May Jesus bless you. Jesus is Lord. प्रभु आपको आशीष दे। यीशु ही प्रभु है जो हमारा अधिकार है, एकमात्र अधिकार। यीशु ही प्रभु है आपके जीवन का, मेरे जीवन का। धन्यवाद। शुभ रात्रि।